Our next topic is Maclaurin's theorem. For first year students, the theorem is if y is equal to fx be a function of x which can be expanded in power of x and the expansion is differentiable term by term any number of times, then the theorem states fx equal to f0 plus x f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus and so on. This is an infinite series. This is useful for finding the expansion of any function, especially when we know that the functional value at x equal to 0 or higher derivatives of the function at x equal to 0. Proof देखें. Let fx equal to, we consider a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on, where a0, a1, a2, an are constant differentiating with respect to x. अब यहाँ देखिए कि हमने, this is equation number 1, how we can assume that the function in the form of polynomial of x, because this is the progressive function fx equal to a0 and a1x plus a2x. This is the polynomial of x. In our Cauchy theorem statement, which is given that the y equal to function of x and which can be expanded in power of x. देखिए ये expand हो रहा है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन. और ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्टेप बाय स्टेप. तो इसलिए हमने मोस्ट सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिया और अब इसमें हम डिफरेंशिएट करके एक एक करके एट एक्स इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट की वैल्यूज निकालेंगे. दैट इज अवर टारगेट. नाउ differentiate with respect to x equation number 1. F dash x, a0 is the constant plus a1 x का differential आया 1, a2 2x, a3 3x square plus and so on. F double dash x, a1 का आ गया 0, a2 into 2, a3 into 6x plus and so on. F triple dash x, this is again 0, a3 into 6 plus and so on. Now what we can do here, in equation number 1 put x equal to 0. So you will get here from the first one f0 is equals to this 0, higher terms are 0, so we will get a0 equal to f0. From this equation you will see here f dash 0
is equals to a1. F double dash 0 is equal to twice a2. F triple dash 0 is equal to 6a3 and so on. Okay, now put the value in the equation number 1. So fx equal to a0. The value of a0 is f0 plus x a1. a10 is f dash 0 plus a2x. The value of a2 is f double dash 0 upon factorial 2 into x square. a3 is f triple dash 0 upon 6 is factorial 3 into x cube plus and so on. So this is the expansion of the function, and this statement is known as a Maclaurin's series, and this is an infinite series. यहाँ पर हमने a0, a1, a2, a3 के कांस्टेंट की वैल्यूज निकाली हैं. अब हम देखें, इससे क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा. एक्सपेंड द फंक्शन y equal to log 1 plus x by Maclaurin's theorem. So very simple solution, that is the y equal to fx is equal to log 1 plus x. F dash x is 1 upon 1 plus x. F double dash x is, this can be written as 1 plus x to the power minus 1. So minus 1 upon 1 plus x to the power minus 2, that is whole square. F triple dash x is 2 upon 1 plus x ka whole cube and so on. So what we can do here, the step by step differentiate with respect to the x of the given function. Put the value x equal to 0. So here f0 equal to log 1 plus 0, log 1 equal to 0. F dash 0 is 1 upon 1 plus 0, that is 1. F double dash 0 is minus 1 upon 1, that is equals to minus 1. F triple dash 0 is 2 upon 1, that is 2. Put the value in the given series, as we know that fx equal to f0 plus x f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus and so on. Fx is log 1 plus x is equal to f0 0 x f dash 0 1 plus x square upon factorial 2 f triple dash 0 is minus 1 x cube upon factorial 3 f triple dash 0 is 2 plus and so on. So log 1 plus x equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so on. This is the expansion of log 1 plus x. So here we can easily find the expansion through the using Maclaurin's theorem. Next is, suppose find the expansion of sine inverse x. Okay, sine inverse x by Maclaurin's theorem. So y1 differentiate with respect to x. This is the given function, 1 upon under root 1 minus x square.
Okay. For higher derivatives, when we have the under root, so it's typical to differentiate number of times. So what we can do here, as far as the successive differentiation part, y1 square into 1 minus x square is equal to 1. Is that clear? Y1 is equals to 1 upon under root 1 minus x square. So for this under root, what we can do, y1 square into cross multiply 1 minus x square equal to 1. Now again differentiate 2y1 y2 into 1 minus x square plus y1 square into minus 2x equal to 0. 1 का डिफरेंशियल 0 आ गया. आप 2y1 से डिवाइड कर दीजिए. y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0. अगेन डिफ्रेंशिएट y3 इज इन. अब इसको हम चाहें तो उससे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते और हायर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल देते. चलिए उसी से कर दीजिए बाई लाइबनीज थ्योरम. yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 yn प्लस 1 माइनस 2x प्लस n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 2, यहाँ ख़त्म हो गया, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन सी 1 वाई एन एक्स का डिफरेंशियल 1 इक्वल टू 0. वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 2n प्लस 1 and minus yn is equals to n square minus n plus n equal to 0. So yn plus 2 into 1 minus x square minus x yn plus 1 into 2n plus 1 minus n square yn equal to 0. Put x equal to 0 क्योंकि इस पे ही चाहिए वैल्यू. तो yn plus 2 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन 0. अब इससे क्या होगा कि जितने भी हायर डेरिवेटिव्स की हमको वैल्यू चाहिए हम आसानी से निकाल पाएंगे. ये आपको मैंने सक्सेसिव में भी बताया था. अब पहले देखें y0 इज f0 साइन इनवर्स 0 0. तो y0 की वैल्यू यानी कि f0 की वैल्यू आपकी आ गई 0. y10 इधर से देखें y10 यहां पर आप जब करेंगे तो x बराबर 0 ये 1 आएगा. y10 बराबर 1. y20 यहां से निकल के आएगा. देखिए y20 बराबर x बराबर 0 देंगे तो ये 0 आ गई. y20 इज 0. अब y30 निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें n बराबर 1 पुट करें तो y30 बराबर 1 स्क्वायर इंटू y10 और y10 का मान 1 आ गया है तो 1 स्क्वायर इंटू 1. और ऐसे ही अगर आप और y4 आगे का डेरिवेटिव देखिए इससे फ़ायदा यही होता है. y4 0 निकालना चाहें तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर y20 और y20 का मान कितना आया 0 तो ये y40 की वैल्यू आ गई 0. तो अब हम एक्सपेंशन में लिखें साइन इनवर्स एक्स एफ एक्स बराबर f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 अगेन 1 या 1 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 1 माइनस एक्स की प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 0. तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारे पास जो एक्सपेंशन निकल के आया वो आया x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. और ये हमें मालूम है कि ये साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है. तो इस तरीके से हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज करके किसी भी फंक्शन का वो एक्सपेंशन निकाल सकते हैं. अगला देखें अप्लाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू प्रूव दैट log sec x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/12 प्लस एंड सो ऑन। सोल्यूशन देखें, एफ एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स, एफ डैश एक्स इज 1 सेक एक्स और सेक एक्स का आ गया सेक एक्स 10x, ये कैंसिल हुआ, ये बराबर आ गया 10x। एफ डबल डैश एक्स 10x का आ गया सेक स्क्वायर एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आ गया 2 सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स 10x और ये आ गया y3 इक्वल टू 2y2 y1। अब हायर टर्म्स हम आगे निकालते चले जाएं। y4 अगर हमको निकालना है तो y4 बराबर 2y3 y1 प्लस 2y2 का स्क्वायर। अब वैल्यू देखें, पुट x इक्वल टू 0, तो f0 इज log sec 0, sec 0 is 1, so log 1 equal to 0, f0 is 0, f dash 0, f dash 0 tan 0, tan 0 again it's 0, f dash 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, f डबल डैश 0 is sec स्क्वायर 0, sec 0 बराबर 1, f ट्रिपल डैश 0, ट्रिपल डैश 0 में आया 2y2 0 और y1 0, तो 2y2 0, y2 0 is 1, y1 0 is 0, this is 0, y4 0, y4 0 में y2 देखिए यहाँ पर y3 0 का मान तो 0 आया, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2y2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू आ गई 1, तो ये आया 1 स्क्वायर बराबर 2। तो अब ये आ गया एक्सपेंशन log साइन एक्स बराबर एफ एक्स बराबर log sec x, सॉरी नॉट साइन एक्स, log sec x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 0 एक्स एफ डैश 0 0 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 0 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 2 एंड सो ऑन। तो ये आ गया log sec x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2x की पावर 4 अपॉन 12 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ log sec x। इसी तरीके से क्वेश्चन है, obtained by Maclaurin's theorem, find first 5 terms in the expansion of log 1 plus sin x। इसका एक्सपेंशन हमको फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 पद निकालने हैं। तो इसके लिए y1 इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स और इसका डिफरेंशियल 0 और साइन एक्स का आ गया cos x। तो ये बराबर आया, अब देखिए क्योंकि हमें हायर डेरिवेटिव्स निकालने हैं इसको इसलिए सिंपलेस्ट करना होगा, और सिंपलेस्ट करने के लिए हमारे पास साइन में कोई फार्मूला नहीं है जो 1 को हटा दे, कॉस में फार्मूला है। तो इसको हम लिखते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। अब जब ऊपर किया तो 1 प्लस और यहां पर आ गया कॉस π/2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां से आया, अब नीचे देखें, पहले नीचे फॉर्मूला लगाते हैं कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1। चूंकि नीचे हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो ऊपर भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इससे आ गया 2 साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस π/4 माइनस एक्स बाई
2, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक इससे कैंसिल हुआ, तो ये बच गया 10π/4 माइनस x/2, ये y1 आया। अभी हमने आगे डिफरेंशिएट नहीं किया है, उसी फंक्शन को इसमें बदला है। बदलने का फायदा अभी आप आगे देखेंगे। y2 इक्वल टू, अब हम करें तो ये आएगा sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस, और दिस इज -1/2, और ये बराबर आया -1/2 सेक स्क्वायर थीटा को लिखें 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये बराबर आया -1/2, ये कितना है 1 प्लस y1 स्क्वायर। तो इससे हमने देखा कि अब हमको हायर डेरिवेटिव निकालने आसान होंगे। हमारा टारगेट यही रहता है कि इसको किसी तरीके से y यानी कि ओरिजिनल फंक्शन के या डेरिवेटिव फंक्शन के फॉर्म में लिख सकें। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म तक निकालने हैं, तो y3 इक्वल टू -½ और ये आया 2y1 y2, 1 का तो 0 आ गया, तो ये आ गया -y1 y2। y4 देखें, -y1 का y2, y2 स्क्वायर माइनस y1 y3। y5 देखें, -2y2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 y4। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें। वैल्यू आप पुट करोगे तो x बराबर 0, x बराबर 0 देंगे तो y इक्वल टू log 1 प्लस साइन 0, साइन 0 इज 0, तो ये आ गया log 1 इक्वल टू 0, तो y0 की वैल्यू आ गई 0। अब y1 0 देखो, y1 0 जब लेंगे इसमें रखेंगे तो x बराबर 0, तो ये आएगा 10π/4, 10π/4 बराबर 1, तो y1 0 की वैल्यू आई 1। अब इसके बाद हमें आगे वैल्यूज निकालनी है। y2 0 की वैल्यू आएगी -1/2, 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू आ गई 1, तो ये आ गई -2/2, दिस इज -1। ऐसे ही y3 0 की वैल्यू यहाँ से -y1 y2, तो -y1 की वैल्यू आई 1 और y2 की वैल्यू आई -1, सो दिस इज +1। ऐसे ही y4 0 निकालें तो y4 0 बराबर -y2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस y1 1, y3 0 is 1, so this is -1, और this is -1 is -y2, तो ये आया log 1 प्लस साइन x fx बराबर f0 0 प्लस x f डैश 0 यानी कि y1 0 इज 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 -1 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 दैट इज 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 that is -2 and so on. So this is the expansion of log 1 plus sin x minus x square by 2 plus x cube upon factorial 3 minus x की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 12 and so on. This is the expansion of log 1 plus sin x. ये आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड e to the power a sin inverse x by Maclaurin's theorem and by Maclaurin's theorem and find the general term. General term, what is the general term? थ्योरम होती है fx इक्वल टू f0
प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ n 0 प्लस एंड सो ऑन. दिस इज द जनरल टर्म. जनरल टर्म इज कितना आया, यानी कि वाई एन 0 निकालने की बात कर रहा है. एफ एन 0, व्हाट इज एफ एन 0? एफ एन 0 इज वाई एन 0, यानी कि जनरल टर्म x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल वाई एन 0 अपॉन n. तो वाई एन 0 आपको निकालना पड़ेगा, जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपने निकाला था, वो पूरा पोर्शन आपको करना होगा. मैं यहाँ पे दोबारा एक बार कर दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन को जरा देखिए. y इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x, y1 इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x इंटू डिफरेंशियल ऑफ a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये e की पावर a साइन इनवर्स x का आ गया, और ये हमने आपको बताया था ये y के बराबर है, तो ये क्या आ गया, a y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 स्क्वायर is 2a square y और y का y1 divided by whole expression by 2y1. So this is y2 into 1 minus x square minus xy1 is equal to a square y. ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, सेकंड रिजल्ट होता था. अब हम इसको वही लाइबनिज थ्योरम से यूज करके n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लाइबनिज थ्योरम. तो yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 yn प्लस 1 माइनस 2x प्लस nn माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 इंटू yn इंटू माइनस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन सी 1 वाई एन एक्स का डिफरेंशियल 1 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई एन. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई. इसको कंक्लूड करेंगे. वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस वाई एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये आ गई हमारे पास. दिस इज दिस वन. पुट x इक्वल टू 0, वाई एन 0 हमें निकालना है. तो वाई एन प्लस 2 0, ये x बराबर 0 हो गया, इज इक्वल टू वाई एन 0 एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब वही n, इस वाई एन 0 निकालने के लिए n बराबर n माइनस 2, जो कि आप 3 बार रखते थे. वाई एन 0 बराबर वाई एन माइनस 2 0 इंटू एन माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगेन पुट n इक्वल टू n माइनस 2. वाई एन माइनस 2 0 इक्वल टू वाई एन माइनस 4 0 इंटू एन माइनस 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब ये हम इसमें मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यूज. एक बार और ले सकते हैं आप. तो फ्रॉम 1 वाई एन 0 इज इक्वल टू, ये आ गया एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ये एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0, दिस इज दिस वन, सॉरी, n माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन. और ये आ गया, अभी तो वाई एन माइनस 4 0 रख दिया. अब देर आर 2 केसेस, आप उसमें लिखते थे देर आर 2 केसेस, वन इज इवन एंड ऑड फॉर n व्हेन n इज एन इवन नंबर. उस केस में yn 0 equal to, it will start from here n minus 2 square plus a square
n माइनस 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन, n बराबर 4 आप ले लीजिए, आपको बताया था। तो जब यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n बराबर 6 लेंगे, सॉरी, तो 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ आया 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y2 0। अब हमें y2 0 की वैल्यू की आवश्यकता होगी। ऐसे ही ऑड केस में yn 0 इक्वल टू आपने n बराबर 5 ले लिया, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम n माइनस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n माइनस 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन। n बराबर 5 लिया तो 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y1 0। अब हमें दोनों वैल्यूज चाहिए। हम दोबारा उसी इस पे आ जाते हैं और पहले इनिशियली हमको वैल्यू निकालनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपको बताया था, यहाँ पर y1 0 e टू द पावर a साइन इनवर्स 0 इज 0, तो e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y0 का मान कितना आ गया, 1। y1 0 यहाँ से आएगा, y1 0 का मान आएगा a स्क्वायर, y0 ये स्क्वायर आएगा, y0 बराबर 1, तो y1 0 बराबर आ गया प्लस माइनस a। हमने आपको बताया था पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसमें, सक्सेसिव में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट जो है y2 0 इस एक्सप्रेशन से निकलेगा, y2 0 x बराबर 0, a स्क्वायर y0, और y0 बराबर कितना है 1, तो y2 0 की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर। और हायर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था ये एक्सप्रेशन आ रही है, देखेंगे। तो यहाँ पर y2 0 का मान कितना आया, a स्क्वायर, इसमें कितना रख देंगे, a स्क्वायर, और यहाँ y1 0 का मान कितना आया, y1 0 का मान a आया, तो ये y1 0 इवन के लिए हो गया और ये yn 0 ऑड के लिए हो गया। अब ये तो अब हमको इसका एक्सपेंशन लिखना था, तो एक्सपेंशन आएगा e की पावर a साइन इनवर्स x। आप आंसर फाइनल कैसे लिखेंगे, fx बराबर f0 बराबर 1 प्लस x f डैश 0 दैट इज y1 0 को मान कितना आया था a, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 0 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ आएगा yn 0 प्लस एंड सो ऑन। आप लिखोगे वेयर yn 0 इज डिफाइंड एज above फॉर ईच केस, n यहाँ लिखेंगे n इज ऑड एंड n इज एन इवन नंबर। यहाँ ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, और इस तरीके से e की पावर a साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें एक आगे डिडक्शन के लिए आता है इस क्वेश्चन में कि डिडक्ट करिए, डिड्यूस, ये आता है डिड्यूस e टू द पावर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। उस एक्सपेंशन से इस एक्सपेंशन को निकालो। तो इसके लिए जो हमने ऊपर पढ़ा, चूंकि वहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, e की पावर a साइन इनवर्स x, आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो कंपैरिजन करेंगे तो a साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा। चूंकि एक्सपेंशन में पूरे में देखिए a कहीं नहीं आ रहा, तो क्या करें, a गायब करने के लिए a को 1 कर दें, तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर कितना आ गया, साइन थीटा। तो पूरे एक्सपेंशन में a बराबर 1 और x बराबर साइन थीटा रखोगे, तो e टू द पावर थीटा इज इक्वल टू, जब आप रखेंगे 1 प्लस ये आया साइन थीटा, और प्लस दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर थीटा इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा। इस तरीके से हम इस एक्सपेंशन के द्वारा इसको डिड्यूस करके निकाल सकते हैं। अब आगे की प्रॉब्लम्स आप लोग और प्रैक्टिस करिए,
बाकी नेक्स्ट ऑडियो पीपीटी में आएगा। थैंक यू।